A very good morning to all of you. Welcome back to my channel Bas Yu Hi Kuch Padhe. Today we are just going to discuss about some fundamental topics of science. I hope these topics are very important for Olympiad, and it is just I am just trying to start from the junior level because the fundamental things are those things which can be grasped by each and everyone, but if we start from a very huge and hard topic, it might be possible that it is not fruitful to everyone. So let's start. First, as we know that in today's scenario there is very much importance of science olympiad, so we are just going to discuss about science olympiad and our topic will be plants. Okay, let's move further. First thing is we have to understand that what are the topics which we are just going to discuss in this slide. First is habitat, second one is adaptation, third one is types of plant on the basis of habitat, and plants for the environment. It means how it is helpful for us. Okay, so let's start with habitat. What is habitat? Habitat is nothing but the place, the natural place where any living organism lives or stay. In respect of plant, when we discuss, every plant has its own home. Different feature. What does it mean? It means that it is quite possible that some habitat may be desert area, some habitat may be hot area, some habitat has very cold area, heavy rainfall and different conditions. And one more thing, that different plants can habitat or adapt or stay or live in different habitat and condition and home. Okay, so this natural home is known as habitat. हम लोग के लिए अपना घर है, ठीक उसी तरह प्लांट के लिए भी उनका अपना एक नेचुरल होम है, दैट इज नोन एज हैबिटेट. ओके, नाउ let's understand adaptation. Adaptation means what? As its name reflect that जब हम कहीं रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को अडेप्ट करते हैं. ठंडी का मौसम आया वुलन क्लॉथ, गर्मी का मौसम आया कॉटन क्लॉथ. लाइक दैट प्लांट्स में भी ये क्वालिटी होता है. And these are the special feature of plants to survive in different habitat, the ability of adjusting in different habitat. For example, कि डिजर्ट प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही कम पानी में और बिना पानी के सरवाइव कर सकते हैं. उनका रूट काफी अंदर तक जाता है और वहां से पानी बाहर खींच के लाता है. उनका जो लीफ होता है बहुत ही हार्ड और स्मॉल होता है ताकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो. ठीक है. सिमिलरली जब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट के तो वो काफी अंदर रहते हैं फिर भी वो सरवाइव कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है कहाँ वाटर में, उस ऑक्सीजन से अपना ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कर लेते हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हैबिटेट. तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजीली दैट टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स व्हाट? लैंड, जो लैंड पे पाया जाए वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट. इसके कुछ टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर, देयर फंक्शन, देयर एबिलिटी. तो डेसिडुअस, एवरग्रीन, कॉनिफेरस, टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं कि इसके अलावा और भी प्लांट हैं जो स्वैम्पी एरिया में या मार्सी एरिया में रहते हैं जहां पे क्या रहता है काफी क्लेई सॉइल रहता है, वो भी है. एंड डिजर्ट प्लांट. इन एक्वेटिक प्लांट फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड. After these, some different or special or specific plants are also there, that is carnivorous or we can say insectivorous, parasites and saprophytes. We will discuss one by one. Okay. Now, plants on land, it means जो terrestrial plant की बात कर रहे थे तो उसमें आते हैं. तो प्लेन की जब बात करते हैं, लैंड की जब बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट रहता है. मॉडरेट क्लाइमेट में जो प्लांट पाए जाएंगे टू टाइप्स, डेसिडियस एंड एवरग्रीन. डेसिडियस मतलब ऐसा समझिए कि जो प्लांट क्या करते हैं कि अपने लीव्स, हाउएवर नेक्स्ट थोड़ी देर आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि डेसिडियस प्लांट वो या ट्रीज वो हो गए
जो अपने लीव्स को ऑटम में पूरी तरह से क्या करते हैं, लेफ्ट आउट, उनको छोड़ देते हैं, सेट द लीफ। और जैसे ही फिर क्या आता है, जैसे ही स्प्रिंग आता है तो फिर से उनके ऊपर सारे लीव्स आते हैं। तो दीज आर द, जैसे ओक हो गया, मैपल हो गया, एप्पल हो गया, दीज आर द प्लांट्स और ट्रीज वी कैन से डेसिडियस एंड एवरग्रीन, जो एक ही बार में सारे अपने लीव्स को सेट नहीं करते, एक ही बार में सारे पत्ते उनके झड़ के गिरते नहीं, थोड़ा थोड़ा पत्ता उनका झड़ता रहता है, इसलिए हमेशा वो हरे भरे रहते हैं। दैट्स वाई एवरग्रीन ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल नीम, ओके, कॉटन, है ना। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट मतलब काफी जहाँ पे बारिश हो, काफी ऐसा जगह जहाँ पे हमेशा बारिश होते रहे, तो वहाँ के जो प्लांट होंगे या ट्रीज होंगे टॉल होंगे, थिक होंगे, एंड फॉर एग्जाम्पल टिक एंड रबर, ओके। अगेन जब हिल्स की बात करते हैं तो हिल्स पे क्या होता है कि वहाँ पे स्नोफॉल होता है, काफी ठंडे का मौसम होता है, तो वहां पे जो ट्रीज पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोनीफेरस। क्या बोलते हैं? बिकॉज उनके लीव्स जो होते हैं वो कोन शेप्ड हो जाते हैं टू सर्वाइव देयर, ओके। और ये जो कॉनीफेरस ट्रीज होते हैं नॉर्मली इन जनरल वे ये सभी के सभी एवरग्रीन ट्री होते हैं। कॉनीफेरस आर एवरग्रीन ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल पाइन हो गया, देवदार हो गया, ये सब के सब हिल्स पे पाए जाने वाले ट्रीज और प्लांट्स हैं। डिजर्ट कैसा होगा वहां का क्लाइमेट? हॉट, ड्राई एंड डस्टी। अब यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए प्लांट में एडेप्टेशन की क्वालिटी है, दैट इज स्मॉल एंड हार्ड लीव्स, लॉन्ग रूट्स टू एब्सॉर्ब वाटर, लेस वाटर लॉस। फॉर एग्जाम्पल बबूल हो गया, डेड पाम हो गया, कैक्टस हो गया, ऑल दीज आर डिजर्ट प्लांट, ओके। नाउ वी कैन मूव मोर। स्वाम्प मतलब कि जहां पे फिसलन देखते हैं ना, काई लगा रहता है, मिट्टी ऐसा रहता है जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, किनको? प्लांट को, ठीक है। तो जहां पे ब्रीदिंग कम होता है वो क्या करते हैं, रूट उनका एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, और वहां से वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक, जिनको ब्रीदिंग रूट भी बोला जाता है। इसमें मैनग्रोव ट्रीज हो गया, सुंदरबन में जो नॉर्मली जो इस एरिया में पाए जाते हैं उसको मैनग्रोव ट्रीज बोलते हैं। सी कोस्ट, जो समुद्री किनारे में या फिर जहाँ बोलते हैं सी कोस्ट एरिया में जो पाया जाता है, का क्लाइमेट कैसा? हॉट एंड वेट। यहाँ के पे सॉल्टी वाटर होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगा, हैवी रेनफॉल होगा। तो इन सब को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं दैट आर टॉल, स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कोकोनट एंड पेपर, ओके। लेट अस सी इन व्हाट इज इन नेक्स्ट स्लाइड, ओके। फीचर जो प्लांट्स के बारे में हम बात की है, डेसिडियस लूज ऑल देयर लीव्स इन ऑटम, न्यू लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग इन स्प्रिंग। ऑटम जैसे आया, पतझड़ जैसे आया, सारे पत्ते झड़ जाएंगे, फिर जैसे ही बसंत आया तो क्या होगा? बसंत बहार, इट मीन्स वहां पे पूरी तरह से फिर से लीव्स आना शुरू हो जाएगा। एवरग्रीन डू नॉट लूज देयर लीव्स एट वंस, ठीक, इसलिए वो एवरग्रीन है। कॉनिफेरस have leaves which are very thin and in the shape of needle, okay, and these trees don't bear flowers, इन trees में flowers नहीं होते हैं, ठीक है। and desert, ये जो desert plant है, their leaves don't have pores, stomata, have you heard, ठीक है, tiny pores which help in the exchange of gases, ठीक है। तो उसी तरह लीव्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं वो होते ही नहीं है, जिस वजह से क्या होता है वहां पे बहुत ही कम ट्रांसपिरेशन, नहीं के बराबर होता, हार्ड विद ड्राई स्पाइन्स और थॉर्न्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? हार्ड हो जाते हैं इसी वजह से, और लेस ट्रांसपिरेशन होता है, इनके रूट्स काफी नीचे जाके वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। सो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ओके। नाउ ओके, प्लांट्स इन वाटर, इट मीन्स एक्वेटिक प्लांट। तीन तरह के, पहला है फिक्स्ड प्लांट्स, क्या होगा? स्मॉल रूट्स होगा, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, ब्रॉड लीव्स, ताकि वो अधिक से अधिक क्या कर सके, अपना ये फोटोसिंथेसिस, सनलाइट को ट्रैप कर सके और उस पर तैरते रहे। स्टोमाटा ऑन अपर साइड, स्टोमाटा ऑन अपर साइड, नॉर्मली स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? अंडर साइड ऑफ द लीफ, बट ये कहाँ पाए जाएंगे? अपर साइड में। वैक्सी कोटिंग ऑफ लीफ, ताकि ये टूटे ना, वाटर में सड़े गले ना, सर्वाइव कर सके। एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस एंड मैनी मोर, ओके। नाउ फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तैरना, जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पानी के ऊपर ही तैर रहा है, ठीक। इसका बॉडी कैसा होता है? स्पंजी, उसका जो स्टेम रहता है ना, फिल्ड विद एयर, और ये तैरते रहता है। नॉट फिक्स्ड,
फ्लोट बिलो द वाटर सरफेस, ये जो है वाटर सरफेस के अंदर ये तैरते रहता है। स्मॉल एंड लाइट वेटेड, डकवीड हो गया, वाटर लेटेस हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया किसका, फ्लोटिंग प्लांट का। वंस अगेन स्पॉन्जी बॉडी और इनका जो स्टेम होगा फिल्ड विद एयर। ओके, चलिए इन नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज दिस? दिस इज प्लांट्स इन वाटर वंस अगेन एंड दिस इज सबमर्ज्ड प्लांट, मतलब सबमरीन सुने, सबमरीन का मतलब जो पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड मतलब जो पानी के अंदर डूबा हुआ प्लांट है, वो पानी के बाहर नहीं है उसका कोई भी पार्ट। थिन एंड नैरो लीव्स, फ्लेक्सिबल स्टेम, फिक्स्ड रूट्स इनसाइड वाटर, नो स्टोमाटा। अब स्टोमाटा नहीं है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा? ब्रीथ थ्रू बॉडी सरफेस एंड एब्सॉर्ब द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट। ओके, नाउ कार्निवोरस प्लांट, तो क्या करता है, एनिमल को खा जाता है, टू सम एक्सटेंट इंसेक्ट। ओके, इसलिए इनको हम लोग इंसेक्टिवोरस बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट, हैव क्लोरोफिल। इट मींस ऐसा नहीं, हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम मेरे एक वीडियो में आपने देखा होगा कि क्लोरोफिल की मदद से क्या होता है, सनलाइट ट्रैप होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बट जहां पे ये पाए जाते हैं वहां का जो सॉइल है उसमें मिनरल की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको खा जाते हैं, और उससे क्या मिलता है इनको, मिनरल्स। इनके पास डाइजेस्टिव लिक्विड्स होता है, फॉर एग्जाम्पल सनड्यू हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पीचा प्लांट हो गया। ओके, तो दीज आर द इंसेक्टिव, बेटर टू से इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ओ ये क्या हो सकता है, डोंट हैव क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स, और डॉटर एग्जांपल में पैरासाइट समझते हैं। कभी कभी ऐसा ही क्रिटिसिज्म होता है ये पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब क्या, जो किसी लिविंग, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई रह रहा है और मेरा ही खून चूस रहा है, मेरा ही नुकसान कर रहा है और अपना सर्वाइवल कर रहा है, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उनका सर्वाइवल कैसे होगा? सर्टेनली वो डिपेंड करेंगे किन पे, दूसरे पे डिपेंड करेंगे, दूसरे प्लांट पे डिपेंड करेंगे, दूसरे लिविंग प्लांट से वो अपना सर्वाइवल करेंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। ओके, नाउ अब फिर आ जाए किस पे, इसके बाद का एक वैरायटी है दैट इज सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स इज हेल्पफुल फॉर एनवायरनमेंट, चूंकि ये डेड एंड डिकेड प्लांट्स, एनिमल्स और जो बासी पड़ा खाना रहता है इधर उधर, उससे ये अपना सर्वाइवल कर लेते हैं। वंस अगेन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इट मींस दे आर नॉट द प्रोड्यूसर। एग्जांपल में माउल्ड हो गया, मशरूम हो गया। अब मशरूम हम लोग खाते हैं ना, तो उसमें अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे मशरूम में जो वो इचिंग नेचर होता है, नॉट लाइक दैट। जो खाने लायक मशरूम होता है दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस एंड बहुत ही ताकत होता है उसमें। ओके, so these are something about plant adaptation, habitat, different types of plants. Okay, so thank you very much for watching this video. Thank you very much for just watching my channel बस ये भी कुछ पढ़े, and I hope कि these types of videos certainly help you to understand in very easy manner science. तो आज का बुधवार विज्ञान यहीं पे समाप्त। If you like this, then please like, and to help me, please subscribe my channel. Help me in the sense कि मुझे पर थोड़ा सा यदि आप मोटिवेट करेंगे, I can just prepare next video, and next video will be yours. Okay, so thank you for watching and thank you very much. Bye bye.